دعا ہے نا, ہم ہفتے میں کتنے روزے رکھتے ہیں؟ 2. ملے گی نہن قومی دین 5. ہمارا یہ عنوان نہیں, لیکن بتا رہا ہوں. ویڈیو سٹارٹ ہے. تھینک یو سو مچ. آئیے ہم کتاب مقدس میں سے دیکھیں گے. ہمارا عنوان ہے باطنی کوڑ سے شفا. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آج ہم سیکھ سکیں گے. آئیے بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں. مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا, انجیلی بیان اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. غور سے سماعت فرمائیے گا. لکھا ہے, جب اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی, اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا, اے خداوند, اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا, میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا. یسوع نے اسے کہا, خبردار کسی سے نہ کہنا, بلکہ جا کر اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ, اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزرانو, تاکہ ان کے لیے گواہی ہو. کتاب مقدس کا پڑھا سنا سمجھا قبول کیا جنا. آج رات ہم سب اپنی برکت کا سبب بنی. زوردار تالیاں کلام خدا کی لیے. ہاللیلویا. بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نئے عہد نامے کا, تو خداوند یسوع مسیح کا جو آغاز ہوا, جسے ہم پہاڑی واز کہتے ہیں, 8 باب تک جب بھی ہم انجیل پڑھیں گے ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ وہ کلام ہے جو خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی پر لکھا ہے. 8ویں باب سے جب یسوع مسیح نیچے آ رہا ہے تو پھر یہ کوڑی جو ہے, 8واں باب پہاڑی سے نیچے کیا ہے. پہاڑی واز کون سے باب کو ہم کہتے ہیں؟ 5ویں باب کو پہاڑی واز ہم کہتے ہیں. اور ٹوٹل 8ویں باب تک پہاڑی واز چلتا ہے. یہاں پر لکھا ہے, دیکھو خداوند یسوع مسیح کہاں سے آیا, لکھا ہے, اور جب وہ پہاڑ سے اتر رہا تھا. کہاں سے اتر رہا تھا؟ پہاڑ سے. ایک بندہ یسوع مسیح کے پیچھے آیا. اب یہ بندہ کوڑ کا مرض ہے, اسے یہ کوڑی ہے, اور کوڑ کا مرض جو ہے یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس بندے کو کوڑ کی بیماری لگ جاتی ہے اس کے زخموں سے پس نکلتی ہے. پس نکلنے کے باعث اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. عام انسان, تندرست شخص اس کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی بدبو جو ہے بندے کو ڈسٹرب کرتی ہے. اب یہ بندہ شرعی طور پر واجب القتل ہے. جب ہم احبار کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جس بندے کو کوڑ کی بیماری ہوتی یا جس کسی کو کوڑ کا مرض ہوتا, اسے یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اس پر خدا کی لعنت ہے. اس پر اس لیے خدا کی لعنت ہے, ضرور اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جو اس کی روح کو لگا ہے, اس کے جسم کو نہیں. ہمارا عنوان ہے باطنی شفا. یہودیوں کے ہاں جس بندے کو کوڑ کا مرض ہوتا اسے بڑا ہیٹ سمجھا جاتا تھا, اسے بڑا نیچ سمجھا جاتا تھا, اسے معاشرہ بری نظروں سے ہی نہیں بلکہ جو کوئی اس کوڑی کو قتل کرتا اسے ایک انعام سے نوازا جاتا تھا. بہت چنگا کام کیتا ہے, کوڑی مار دیتا ہے. یہ کوڑی کی اوقات تھی. کوڑی کا سٹینڈرڈ جو ہے یہ بہت گرا ہوا ہے. بہت دو قسم کا کوڑی کا سٹینڈرڈ ہے. اور کوڑی جس بندے کو کوڑ لگ جاتا اس کے ساتھ بڑا برا حشر ہوتا. اتنا برا حشر ہوتا کرتے جڑے جمے ہوئے بچے نے اپنے پیروں تک کے مار کر دیں سے. اپنے والد کو بچے دھکے مار کر نکالتے اور کہتے نکل جا, تجھ پر خدا کی لعنت ہے, تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چلا, لیکن اب تیرا بدن, تیرے بدن کی بدبو, تیرے بدن کی بیماری جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ خدا کی لعنت تجھ پر ہے. ہمارے گھر سے دفع ہو جا تاکہ لعنت ہمارے گھر سے جاتی رہے. یہ حال کوڑی کے ساتھ ہوتا. اس کی بیوی اسے دھکے مار کر باہر نکال دیتی جس بندے کو کوڑ کا مرض ہوتا. ہاللیلویا. سمجھنے کی کوشش کرے. آج جس بندے دی کار عزت نہیں, محلے کی عزت نہیں, انہوں غور کرنے کی ضرورت ہے. آج اسے غور کرنے کی ضرورت ہے.
हालेलुया। मैं पहले कह चुका हूं, जेड़ा बंदा महल्ले च मकबूल नहीं ना, उन्होंने गौर करने की जरूरत है। अब जब काहिन टेस्ट करता, इसका एक आइन था, श्रेय आइन था, अहबार की किताब पढ़िए, आपको वहां पर मिलेगा 13वें बाब में। इसका श्रेय आइन ये था, जिस बंदे को कोढ़ का मर्ज होता, वो जनाबे वाला काहिन के पास जाता और काहिन उसका टेस्ट करता। अगर टेस्ट में साबित हो जाता है इसको कोढ़ का मर्ज है, तो काहिन उसे एक हुक्म देता था कि हुण तू इथों महल्लों बाहर जाना। कोई बंदा टाउन में, कॉलोनी में, शहर में, गांव में नहीं रहा करता था, उसे शहर से, गांव से, टाउन से, घर से निकाला जाता था। अब जैसे ही काहिन टेस्ट करता और टेस्ट में कंफर्म हो जाता इस बंदे को कोढ़ दा मर्ज है, तो काहिन से कहता अब यहां से ये रास्ता जाएगा जो कोड़ियों के लिए अलग इलाका बनाया गया, तूने वहां जाना है। अब कोड़ियों का अलग इलाका भले कौन सा था, जहां पर सारे गांव शहर का कूड़ा फेंका जाता था, कोड़ी उस जगह पर रहते थे, क्योंकि अगर कोई इन्हें मिलने जाता उसे भी कोड़ी समझा जाता, उसे भी नापाक समझा जाता, उसके साथ भी सेम कोड़ी जैसा सलूक किया जाता। इसलिए ये वहां पर रहते थे, क्योंकि इंसान होने के नाते बीमारी तो ठीक है, लेकिन बीमारी में भूख इन्हें बड़ी जरूरी लगेगी, इसलिए ये वहां पर होते जहां पर सारे शहर, सारे गांव का कूड़ा फेंका जाता था। वहां से ये उस कूड़े में से रोटी खाते, टुकड़े खाते, खाने की चीजें निकाल कर अपना पेट भरते जब तक के मर ना जाते। रोटी तो कोई देन जानता नहीं सी। अब अंदाजा लगाए जिहदे बच्चे आप धक्के मार के बाहर कढ़ने, वो रोटी लैके जाएंगे प्यो वास्ते। समझ आ रही है? ताड़ी तालियों की आवाज दसी। मेरा दिल चाह रहा है हम खुदा की सताइश और जोरदार तालियों के साथ और जोरदार। हालेलुया, बुलाओ यीशु मसीह की। अब जब कंफर्म हो जाता है इस बंदे को कौन है, तो काहिन उसके लिए एक हुक्म लागू करता, और वो हुक्म ये था कि तूने जब यहां से, गांव से या शहर से बाहर जाना है, तो तेरे लिए कानून ये है, कहीं लोग तुझे देखकर कोड़ी या नापाक ना हो जाएं। तेरे लिए कानून ये है कि तूने अपना दाहिना हाथ अपने ऊपर वाले होंठ पे रखना है और एक हाथ बुलंद करके कहना है मैं नापाक, मैं नापाक। जोर जोर से तूने कहना है मैं नापाक, क्योंकि नापाक बंदे की दहशत बहुत ज्यादा होती थी। अनपाक बंदे की दहशत इंज होती सी, अज गोलियां बंदूकां की लड़ाई होए ना, लोग नहीं जे कमरियां च वड़दे, बाहर हो सो वेंदे नहीं। एवं जिन्हें गुनाह नहीं किया वो गोली खा के मरिया होंदा है। अब कोड़ी किससे ज्यादा दहशत सी उस वक्त, इतना ज्यादा दहशत सी। लिखा जब ये कहता कोड़ मैं नापाक, लोग अपने दरवाजे बंद करके पीछे वाली कोठड़ी च वड़ जाते ही किते इहदा साया इहदी हवा ना हान लग जाए। इतनी दहशत इस बीमारी की। अब कायम कहता जब तूने यहां से निकलना है तो आवाजें बुलंद करना है मैं नापाक, मैं नापाक। कोई मेरी वजह से, मेरे साए की वजह से नापाक ना हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो अपने घर के अंदर चला जाए। मैं इस रास्ते से आ रहा हूं क्योंकि मुझ पर खुदा की लानत हो गई है। वो लानत बीमारी की वजह से मेरे जिस्म पर जाहिर हो रही है। जैसे जैसे मैं खारिश करता हूं मेरा कोष, मेरा मांस उतरता जाता है, मेरी हड्डियां, मेरी पसलियां नजर आ रही है, मेरे जिस्म से बदबू आ रही है। जो आम इंसान सूंघ नहीं सकता वो बदबू मुझ में से आ रही है। इसलिए मैं कहता हूं मेरा रास्ता साफ कर दो। आज खुदा ने मुझ पर लानत की है। कहीं मेरी रूह को जो बीमारी लगी है वो मेरा गुनाह है, इसलिए तुम मेरे गुनाह में शामिल ना हो, मेरा राह अलग कर दो ताकि मैं अपनी जगह से चले जाऊं। जामा किथे जे तालियां बजानी तो खोल के बताओ। हालेलुया। मुकद्दस याकूब को कहा गया यसू दा इनकार कर कहंदा नहीं होना, कर यसू दा इनकार कहंदा नहीं होना। तो वजह की है? कहंदा मैं ओदा नाम लैन तो बगैर रह ही नहीं सकता। लिखा उबल ते कड़ा के अंदर याकूब को डाला गया जिसके नीचे बेशुमार आग बल रही थी।
और वो ऑयल जो था वो उबल रहा था, उसमें डाला गया, वो वैसे ही बाहर निकल आया, उन्होंने यीशु को क्या कहा, मैं नपाक, कान तस्दीक कर देता अब नपाक है, 7 दिन का टाइम देता, 7 दिन के बाद जब कंफर्म हो जाता ये नपाक है तो कान कहता तेरे लिए ये आईना है, यहाँ से तुझे बाहर जाना है और ये अलावते जाना है कि मैं क्या हूँ, नपाक हूँ, मैं कोड़ी हूँ। अब हैरानगी की बात यहाँ पर ये है, ये बंदा जानता है मैं शहर गया मैनू मार देना है, मारा भला किस तरह जाता था कोड़ी को, पत्थरों के साथ, उस पर पत्थरों का ढेर लगाया जाता था, जो कोई कोड़ी को मारता फन्ने खा बन जाता था, उसको इनाम मिलता था, उसके लिए क्लैपिंग की जाती थी, तालियां बजाई जाती थी, इन्हें बहुत चंगा काम किया, गंदगी खत्म की थी। ये हालत है इंसान, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का शोहर है, किसी का चाचू है, किसी का मामू है, लेकिन जब कोड़ साबित हो जाता सी पादी साहब उन्होंने कट देंगे सी। बीबियां तो बिला वजह बंदियां नूं मार दिया ना, वो एक वजह सी कोड़ दी, वो जेडे बर्तन च खा रहे जिन्हें कोड़ सा वो ही उहदे लक च मरे, चल निकल जाए, उन्हें बिला वजह मार दी है। आज नहीं मैं प्यार ना मारन डई है, हालेलुया, प्यार होना चाहिए। मुकद्दस आदम, इनकी एक लड़ाई हुई है, लड़ाई हुई कहता है ओ पलिए छड़, तू मेरी हड्डी च हड्डी ते मेरे गोश्त च गोश्त, मैनूं मार की करना है। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। अब ये बंदा कोड़ का मरीज है, इस पर कोड़ का मर्ज है और कोड़ी को नापाक, नहायत नापाक समझा जाता है। अब यीशु मसीह जब पहाड़ से नीचे आ रहे हैं, एक शख्स आ गया है, आया भी शहर से भी, अब इसको ये पता है मैं शहर से गया मैनू मार छड़ना तो मेरा मुल कोई नहीं पैना, ना मेरा को केस होना है, बल्कि मारन वाले भी इनाम मिलना है। पता है नहीं इस शहर से आया कि है, इन्हें यीशु के बारे सुनया ही वो मुर्दे भी जिंदा करता है। खुदावंद यीशु मसीह की। ठीक है, यीशु मसीह के पास जब आया, यहां पर जरा गौर करिएगा हुआ क्या। जब उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़, अब ये सारी भीड़ नजात याफ्ता नहीं है, यीशु मसीह के साथ 4 किस्म के लोग एनी टाइम साथ रहते थे, सारे उधर मुखालिफ, 4 किस्म के। एक रोटियां खाने वाले, सॉरी ये मैं जनरल तौर पे बात कर रहा हूँ, बात भाई साहब 2 देगा फिर कादिन जगह मुकनी, जगह कट जानी साढ़े, शुरू तो ये नहीं है। यीशु मसीह ने वैसे आदत 5 रोटी खवानी, मैं लोग हमारे भाई कहते हैं सुनते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहना रोटी खवाना हजरत ईसा अलैहि सलाम की सुन्नत, वो कहना मैं इन्होंने भुखिया नहीं जान देना चाहता, इन्होंने रोटी का अरेंज करो। हालेलुया, यीशु की सुन्नत है, अगर आप खाना देते हैं तो हम यीशु की सुन्नत पूरी करते हैं। सुन्नत का मतलब है किसी का काम बरकरार रखना। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। अब बहुत सारी भीड़ है और उसमें एक किस्म के वो लोग हैं जेड़े ओदे विचों नुक्स कटन आए ने, किते गलत गल करे ही इहदे पत्थर मार मार के इहनू संसार कर दी। यहूदियां कल्ले हन नाल, इहदे नाल लेना जो गलत गल करे इहनू मार दियो। यहूदियां यीशु मसीह को मारने के लिए इसके साथ लोग छड़े हुए सन, इहदा तस्दीक करो, जिथे गलत गल करे मार छड़ो। दूसरे लोग, तीसरी किस्म के लोग शिफा और मोजजा लेने के लिए थे, और चौथी किस्म के लोग यीशु मसीह के शागिर्द, जो यीशु मसीह ने तूफान रोकया कहते ने ये है कौन है। हैरानगी की बात, कुछ देर पहले कहने तू साडा बाप, तू उस्ताद, साडा रब्बी, ते जदों ने तूफान को कहा रुक जा, तूफान रुक गया। यहाँ पर बड़ी बरकत की बात करने दिल कर रहा है। साइंसदान कहते हैं हवा पानी बारिश के कान नहीं होंगे। मेरे यीशु ने कहा बारिश रुक जा, बारिश ने सुन लिया, रुक गई। बारिश ने सुन लिया सी उत्थे ही रुक गई बारिश, देखा बारिश थम गई। हालेलुया, इसलिए तो कहता है मैं इब्राहिम ने पत्थरों तो भी पैदा कर सकना, अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि मसीहत का कोई वजूद नहीं है, ये कोई ज्यादा पुराना मजहब नहीं है। कहते कौन है जिनके दरमियान हम रहते हैं, कहते बस एडे लंबे चौड़े नहीं है। लास्ट टाइम यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर से एक पत्थर
बरामद हुआ है उस पे सलीब बनी हुई है, वो 2000 साल पुराना है। इसलिए यीशु कहते हैं जो इंसान जो पुराने पत्थर दसन के जनाब मसीहत बड़ी पुरानी है। उस पत्थर ने बताया मसीहत आज नहीं है, जब पाकिस्तान का वजूद ना था तब से मसीहत पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान बनाने वाली मसीहत है। यीशु मसीह जब पाकिस्तान इंडिया अलग किया गया तो क्रिश्चियन ही तो है जिन्होंने कहा सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। मैं भी उसे किसी का मुल्क नहीं समझता, मैं इसे अपना मुल्क समझता हूँ। इसलिए मैं तेरी दुआ करना, मेरे बुजुर्गों ने खून बहाया इसके, सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। आपको पता है जब ये अलग हुआ तो बड़े ऐसे लोग सन जो क्रिश्चियन नहीं सन, उन्होंने लकड़ी दियां सलीबां अपने गले च पा लिया मौत तो बचने वास्ते। जिदे गले च हिंदू सलीब देते ही उन्हें मार देनी सी, कहते इन्हें मार भी छड़िया तां भी इन्हें हमेशा नहीं जिंदा हो जाना है। लिखा है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की इंज नहीं जे कुदरत होंदी है। जे कुदरत इंज है वे दसो। लिखा जब खुदा बोलता है तो जमीन पर गुंजाल आते हैं। तुसी इत्थे मेरा पत्ते नहीं हिला सके आवाज ना, ये कुदरत केड़ी है? मैं खुदा की कुदरत ऐसी नहीं मानता। लिखा है जब यरू की दीवार गिरानी थी तो खुदा ने कहा दिन में एक मरतबा चक्कर लगाकर बुलंद आवाज से नारा लगाना, जब 7वें दिन तुम नारा लगाओगे ये दीवार, और दीवार जी यरू दी इंजदी सी जे ओदे उत्ते एक टाइम 4 टांगे चल सकते। टांगे किने किने वेखे ने? टांगे घोड़े 4 टांगे इंज इंज चल सकते। एडी वड्डी दीवार उच्ची सी, ओनू आम बंदा ढा ही नहीं सकता। उन्हें कहा जो तुसी नारा बुलंद करोगे, आज तुसी नारा बुलंद करोगे, थाड़ी जिंदगी दे अगे जिहड़े दीवारां इबलीस ने बनाईयां यीशु अपने हाथ नाल ढा देगा। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। लिखा है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की। अब तुसी आप इंसाफ कर लो, कुदरत है हालेलुया। मुकद्दस तौत कहता है खुदावंद तेरे हुजूर आसमान पहाड़ थरथराते हैं। लिखा है जो कौम नारा बुलंद कर दी सी ना, पढ़े आप तारीख पढ़े बाइबल की, जो कलीसिया इसराइली नारा बुलंद करते सन ना 5 बादशाह रले सन। हुण इन्होंने इत्थों अगे नहीं जान देना इसराइलियां। 5 बादशाहों से मुराद 5 मुल्क की फौजें रली हुई थी, इन्होंने इत्थों अगे जान ही नहीं देना। लिखा जब इसराइलियों ने दूर से आवाज बुलंद करके नारा लगाया ना, लिखा वो अपने पिंडा समान चुके साइड तो देखे इत्थों लंघ जाना ही इन्हां ते गालिब नहीं आ सकते। इसलिए बुलंद आवाज ना बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। आज ताड़ियां सारी दोबारा कह गईयां जी। लिखा इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और सुनने वाला और इस पर अमल करने वाले तीनों ही क्या है? मुबारक। तो जब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ अगर आप मेरा साथ देते हैं तो आप भी बरकत का सबब बनेंगे। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। अब ये कोड़ी जो है, ये कोड़ी जानता है कि यीशु मसीह नाल वो लोग ने जिहड़े शरा दे मुअल्लिम आलिम मुसफ़र मुफस्सर आलिमुद्दीन ने उन्हें इस चीज़ का तहैया किया कि जिथे अही रहना है उसे कोड़ी नहीं रहेगा, मैं मार दिता जावांगा। कितना सिंपल और पुख्ता ईमान है इस बंदे का। मैं बड़ा खुश हूँ इसके ईमान पर। ये जानता सी मैं मर जाना, मैं बचना ही नहीं है। मैनू उन्हें मार मार पत्थरों का ढेर मेरे उत्ते ला के उत्ते लिख देना में कि अज दे दिन इस तारीख से इन्ने लोग एक बंदा मारिया, सानू बड़ा ही बड़ा एजाज हुआ है। आपको पता है हमारे मुल्क में भी ऐसा होता है, हुंदा है कि नहीं हुंदा? हमारे मसीहों के साथ ऐसा होता है, मारने वाले खुश होंगे। इन्हों ये नहीं पता जिन्होंने असीं मारने ओदे खून नाल करोड़ा मसीह होर जम पौंदे ने। हालेलुया, मसीह का खून पैदाइश का सबब है। खुदावंद यीशु मसीह की। तो ये जानता है कि यीशु मसीह के पीछे बहुत सी भीड़ है, उन्हें सारे एक एक पत्थर चुके आना। अब भीड़ यीशु मसीह के साथ कितनी होती है? लिखा जब यीशु मसीह ने रोटियों पर 5 रोटियों 2 मछलियों पर बरकत पाई तो औरतें और बच्चे निकालकर कितने मर्द थे? अब अंदाजा लगाएं इतने लोग यीशु मसीह के साथ थे। सारे शराद आलम ये जानता सी मैं मर जाना। कैसा ईमान है? कहता अज मर जावा ते मर जावा, सदके जाऊं आस्तर पर।
आंधी मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी, अगर मैं मर गई तो मर गई, मर्दगी जा कौम को कह रोजा रखे, जे मैं मर गई तो मर गई, मैनू खुदा ने किसी वक्त लिए इत्थे खड़ा किया है, मैं बादशाह के हुजूर जावांगी ताकि मेरी कौम सलीबी मौत तो बच जाए। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। लिखा है अब ये भीड़ है, अब जब ये भीड़ यीशु मसीह के साथ है, ये सारी भीड़ कोड़ी को बड़ा ही नापाक समझती है, और शरई तौर पर जो कोई जिस बंदे पर कोड़ी का परछावा पड़ जाता, परछावा पंजाबी चांदनी, मैं साया कह देता हूँ, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। हालेलुया, खुदा कितने यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं? हाथ उठाए, हाथ उठाए, बड़ी खुशी है, बाइबल कितनों के पास है? ये है हमारी एजुकेशन। गुजारिश है, यही हमारा हथियार है। बाइबल में लिखा है खुदा ने अपने सब नामों से किससे ज्यादा इज्जत दी है? नहीं ना आंदा मेरे भाइयों, बोलो तो सही। खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत किसे दी है? पादी साहब इंजी गल है। हालेलुया, बाइबल में लिखा है घास सूख जाए तो सूख जाए, फूल कुमला जाए तो कुमला जाए, पर खुदा का कलाम अब तक। बाइबल मुकद्दस दुनिया के अंदर बेशुमार बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है, और 10-10 हजार पेज की बुक बनी हुई है, लेकिन दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर एक लाइब्रेरी है, वहां पर करोड़ों अरबों किताबें पड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें से किसी एक किताब के अंदर भी ये नहीं लिखा, ये वाहिद खुदा का जिंदा कलाम है, जिसमें लिखा है आसमान और जमीन टल जाएं, ये कलाम अब तक कायम रहेगा। किसी किताब में ये नहीं लिखा, किसी किताब को ये ऑनर नहीं है सिवाय खुदा के लाफानी कलाम के, ये अब तक कायम रहेगा। आपको पता है इसको खत्म करने वाले आज मनोवन मिट्टी के अंदर आए, आज भी जिंदा हमारे दरमियान में। हालेलुया, ऐ हम जानदा सी मैनू मार देना है। मैं यहाँ पे इख्तिताम कर दूंगा, ज्यादा टाइम हो गया, किन्ने कहते ने हम इख्तिताम कर दें? मैं खत्म कर दिया इत्थे, हाथ खड़े करके दसो ना। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया, लिखा है ये बंदा जानता सी उन्हें ना मार छड़ना। अब यीशु मसीह की जात पर हम गौर करते हैं थोड़ा। इनू कोड केड़ा लगा सी? एदी रूह नू, बातनी कोड से शिफा, इसकी रूह को कोड लगा, इसलिए इसके घर वालों ने इसे रूढ़ी पे भेज दिया ताकि उठे फड़ के रोटी खाए। अब यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह के पास आया और कहता है, और देखो एक कोड़ी ने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावन अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ। कैसा ईमान! यसाया की किताब में लिखा है, ऐ खुदावन अगर तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा। बाइबल में यह भी लिखा है, गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम बढ़ जाएंगे। हालेलुया, कैसा ईमान है! कहता है खुदावन तू शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा। कोड ला इलाज, का इलाज कोई नहीं, इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। कहता तू शिफा बख्शेगा तो मैं पाक साफ हो जाऊंगा। और फिर किया क्या? सिजदा कर दिया यीशु मसीह। अब भीड़ सारी देख के रुक गई। वो कोड़ी अही कितने पाक ना हो जाइए, यीशु मसीह तुरा जा रहा है कोड़ी की तरफ यीशु मसीह चलता जा रहा है। अब सारे फकी फरीसी साथ हैं। फकी फरीसियों ने पत्थर चुक लिया। ए मौका ठीक है, अज जिवें यीशु ने कोड़ी नूं हथ लाया, इन्हें शरई तौर ते नापाक हो जाना, पत्थर मार मार के अपना मिशन कामयाब करना। अकल दे अन्ने होने, ताड़ी औकात नहीं। लिखा है वो कुदूसियों का बाप है, जिहड़े कहंदे ने ही पाकीज़ा दी बादशाही च रहने आ, वो उन्हां दा भी बादशाह है। हालेलुया, कुदूसियों का खुदा। कुदूस का मतलब है पाक, और कुदूसियों लाखों करोड़ों अरबों कुदूसी एक साइड पर, सारी कायनात के इंसान एक साइड पर, एक तरफ मेरा यीशु, एक तरफ उन सब से ज्यादा पाक।